یوں بھیجے جیسے ان میں بچہ ہو سینے سے لگا ہوں۔ بہرحال میں فیصلہ کر چکا ہوں اور باقی سب بھی یہی مناسب خیال کرتے ہیں۔ باقی سب کو وہ بری طرح چونکی تھی۔ باقی سب امی ابا بہن بھائی وہ نظریں چرا کر بولا تھا۔ اور دوسرے اصل بات یہ ہے کہ وہ اب پہلے جیسی مجبوری بھی نہیں ہے، نہ ہمیں اور نہ انہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے شوہر کی صورت دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ وہ وقت گزر گیا، بھول بھال گئی دنیا، یہ بچہ۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب تو وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے، ایک عہدے پر، رتبے پر ہے۔ بات میں وزن تھا اور وہ اس سے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ وہ جملوں سے زیادہ آنکھوں سے سمجھا رہا تھا۔ لیکن کیا ان کی اس نئی زندگی میں اس کی جگہ ہوگی؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ اٹک گئی۔ سب سیٹ ہو چکا ہے، جگہ خود بخود بن جاتی ہے۔ بہرحال میں فیصلہ کر چکا ہوں، ناانصافی میرے اپنے بچے کے ساتھ ہوگی، یہ ڈر نہیں ہے، مگر میں اس سے محبت نہیں کر سکوں گا۔ اب تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ اب پینترا بدل کر داؤ کھیل رہا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوبی تھی۔ کالج میں گزارے جانے والے 5 گھنٹے ذہنی اور جسمانی اعتبار سے پرمشقت تھے۔ پھر بھی اگر پڑھنے والی شجرات دار ہو تو جو کبھی پیریڈ مس نہیں کرتی تھی۔ فارغ وقت میں وہ دوستوں کے جھنڈ میں بیٹھنے کے بجائے لائبریری میں چلی جاتی، کتابیں پڑھتی، اخبار کی ورقدانی کرتی۔ کینٹین جانے کا بھی شوق نہیں تھا اور پاکٹ منی اس کی اجازت میں نہیں دیتی تھی۔ وہ اخبار کا پورا صفحہ چہرے کے آگے پھیلا لیتی اور بند ہونٹوں کے ساتھ بے آواز گھر سے لائے پراٹھے کے لقمے اتارتی رہتی۔ لائبریرین نے اس بات کو دیکھ لیا تھا، مگر وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر میں تھی اور ان پورے 2 سالوں میں سب سے زیادہ کتابیں جاری کروانے کا اعزاز اسی کو حاصل تھا۔ اس کے ظاہری حلیے سے اس کی کلاس کا پتہ چلتا تھا۔ ایک سفید گھرانے کی سادہ سی لڑکی، سستا سا بیگ، ڈھیلا ڈھالا یونیفارم، لمبی چوٹی، سادگی سے بنا مانگ نکالے گندی ہوئی وہ چوٹی آگے ڈال لیتی اور پڑھنے کی ماہیت کے دوران چند لیٹوں سے کھیلتی رہتی، سارے اخبارات چڑھ جاتی۔ اتنی قابل اور علم دوست لڑکی کے لیے لائبریرین کے لیے دل میں خود بخود ہی گنجائش پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بے پناہ ذہنی مشقت کے بعد جسمانی مشقت بھی جھیلتی تھی، اور شاید بخوشی بھی۔ یہ شاید اب عادی ہو گئی تھی۔ کالج گھر سے کافی دور تھا، اسے 2 بسیں بدل کر آنا پڑتی تھی، مگر وہ صبح جلدی کے باعث 2 بسیں کر لیتی تھی، مگر واپسی پر ایک ہی بس لیتی۔ محسنہ اسے پورا کرایہ بھی دیتی تھی اور جیب خرچ کے نام پر کچھ نوٹ دبوا دیتی، مگر شجرا کو وہ پیسے بچانے ہوتے تھے اور اسی لیے وہ پراٹھا کھاتی اور پیدل چلتی اور مہینے کے آخر میں کوئی کتاب خرید لیتی، نوٹس لیتی اور اب پڑھائی کے دیگر اخراجات نکالتی۔ وہ جانتی تھی محسنہ اس سے اتنی ہی رقم دے سکتی ہے، جس میں کٹوتی حرج از مکان نہیں تھی اور بڑھوتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کلاس میں شجرا کی واہ واہ تھی۔ ٹیچر اس کے رزلٹ سے بہت خوش تھی۔ شجرا کی لکھائی موتیوں جیسی تھی اور اگلاس سے پاک پیپر اس قابل تھا کہ اسے اخبار میں چھپوا دیا جاتا۔ تمہارے پیرنٹس بہت خوش ہوتے ہوں گے، ہے نا شجرا؟ ٹیچر کے نہ جانے کے بعد لڑکیاں تو جلے منہ بناتی کلاس روم سے بھاگی، مگر ایک ڈھیر سا اس کے گرد بھی اکٹھا ہو گیا تھا۔ سب اس کا پیپر دیکھنے کی کوشش میں ڈیسک پر گھیرا بنا کر جھکی ہوئی تھی۔ پیرنٹس نہیں، ایک لڑکی نے ٹوکا، صرف مدر۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا شجرات؟ تمہارے فادر؟ وہ کزن رکی کہ شجرات خود ہی درست جواب دے گئی۔ ہاں، اس نے واضح صاف لہجے میں اس بات میں سر ہلایا۔ وہ فوت ہو چکی ہیں جب میں 6 برس کی تھی۔ اوہ، کورس میں تعصب کا اظہار سب کی طرف سے تھا۔ پھر کیا تم اکیلی رہتی ہو؟ یعنی میرا مطلب ہے کہ نہیں، ہم اپنے ماموں کے ساتھ رہتے ہیں۔ میرے 2 ماموں ہیں۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ اسے لائبریری جانا تھا، صرف ان پیپرز کی وجہ سے یہاں رکنا پڑ رہا تھا۔ اس کی عجلت چند کو ناگوار گزری۔
मुंह पर मारने के अंदाज में पेपर इसके सामने पटके कि उसने कतन बुरा न मनाया। बैग कंधे पर रखे खड़ी हो गई। इसके जाने से मुतवक्का रिएक्शन ना देकर पेपर पटकने वाली लड़कियों को ज़्यादा बुरा लगा, जैसे वो इन्हें अहमियत ही ना दे रही हो। वैसे क्लास में तुम खामोश रहती हो, मेरे ख्याल में कोचिंग वगैरह भी नहीं लेती हो। नोट्स की बहुत तारीफ़ कर रही थी टीचर। क्या अपने मामुओं से बनवाती हो या किसी से खरीदती हो? वैसे तुम खरीदने वाली लगती तो नहीं हो। कहने वाली ने इसे सर से पैर तक देखा, फिर अपनी तईद अपनी हमनवा दोस्तों को भी। सही कह रही हो, मैं वाकई नोट्स खरीदने वाली नहीं हूँ, और मेरे मामू बड़े मामू की वर्कशॉप है जो स्पेयर पार्ट्स का काम करता है, और छोटे मामू मैट्रिक फेल हैं। मैं ये नोट्स लाइब्रेरी में जाकर बनाती हूँ। टीचर्स के लेक्चर नोट कर लिए जाएं, क्लास में दिमाग हज़र रखा हो और छोटे से छोटे टॉपिक के लिए कम से कम 4 किताबों से रेफरेंस लिया जाए तो हम इससे भी अच्छे नोट्स बनाकर दांत समेट सकती हो। उसने बहुत धीमे लहजे में नुस्ख़ा कीमिया बयान किया था। वो आगे बढ़ रही थी, ढेर खुद बहुत झट गया था इसे रास्ता देने के लिए। मैं वहीं जा रही हूँ, चाहो तो आप सब भी आ सकती हो। इसने आखिरी जुमला किस तेज़ी से कहा था और इससे बढ़कर तेज़ी दिखाते हुए क्लासरूम से निकल गई थी। हर तारीफ़ और तनकीद से परे शजरत दर बहुत खामोश कैफियत की ज़ेरे असर अखबार चेहरे के आगे फैलाए बैठी थी। इसके रोल किए पराठे में भिंडी की भर्त थी, मगर ना तो अखबार पढ़ा जा रहा था, ना ही शदीद भूख के बावजूद वो खाने से लुत्फ़ उठा रही थी। बस नवाले हल्क से उतर रही थी। वो सतर पढ़ रही थी, मगर गायब दिमागी सी थी। इसका सारा ध्यान क्लास फेलोज़ की गुफ्तगू में अटका था। तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होते होंगे। बोला काफिया इसके लिए एक तकलीफ़ था, अरमान था जो हसरत में तब्दील हो चुका था, और जैसे अब वो इस हसरत को भी फरामोश कर चुकी थी। इसके अब्बू इस वक्त उसे छोड़कर चले गए थे जब बच्चों की तालियां पीटने, हंसने, रोने ही को सराहा जा सकता था। यानी वो छठे बरस में थी जब वो फौत हो गए थे। पढ़ाई लिखाई के हवाले से सराहे जाने का दौर शुरू होने से पहले ही। यकीनन अगर आज वो होते तो इनसे ज़्यादा सराहने वाला इस पूरी दुनिया में कोई और ना होता, मगर वो नहीं थे। अम्मी थी और दीगर बहुत से लोग थे, मगर इन सब को शजरात की कामयाबियों से कोई सरोकार नहीं था। ये नहीं था कि वो उससे जलते थे या किसी भी किस्म का अनादो बुग़्ज़ था। दरअसल मोहसिना और दीगर अहले-खाना इदराक रखते ही ना थे कि शजरात कितनी काबिल है, कितनी मेहनती है और कितनी कामयाबियाँ समेटती हैं। मोहसिना ये ज़रूर चाहती थी कि वो पढ़े लिखे और ज़रूर ही कुछ बन जाए। इसके स्कूल की अहमियत इतनी थी कि वो इसका यूनिफॉर्म धोती थी और इस बात का ध्यान रखती कि कोई ना कोई सूखा सालन, आलू की भुजिया या कभी कभार अंडा लाजमी सुबह सवेरे मौजूद हो, जिसे वो इसके लंच के पराठे में रोल कर सकें। इसकी किताबों के ढेर को संभाल कर रखती थी और एक भी वर्क ज़ाया ना जाने देती। यहाँ तक कि गोला बनाकर फेंके कागज़ को भी हाथों से प्रेस करके सीधा कर लेती और इसे दिखाकर कतन बेकार की तसल्ली के बाद ज़ाया करती। घर का माहौल कतन इल्मी नहीं था। बड़े मामू ने बड़े बेटे को अपने साथ वर्कशॉप पर ले जाना शुरू कर दिया और लड़कियां भी माओ के साथ हाथ बिठाते बिठाते घर में रह गईं और बहुत कम उम्र में ही अपने घरों की हो गई। ऐसे लापरवाह माहौल में शजरतुद्दर की जहानत और मेहनत खुददाद थी और शौक मरहूम वालिद की जानिब से लहू में गर्दिश करता था। वो स्कूल टीचर थे और मोहसिना फ़क़्त इतना पढ़ना लिखना जानती थी कि गुजारा हो जाता। कमा के लाने के लिए शौहर थे, घर कैसे चलाना है इसकी गाइडलाइन भी दे देते, और मोहसिना इन औरतों में से थी जो बिना रतोकद के शौहर के बताए रास्ते पर चलती हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। और मास्टर अब्दुल रहीम तो फिर सचमुच शानदार इंसान थे। ज़िंदगी ने मोहलत ना दी, अभी तो सिर्फ पूरी बे और आधी बे का फ़र्क बताया था। उर्दू और इंग्लिश में नाम लिखना सिखाया था। इसके साथ लहक लहक तक 5 तक के पहाड़े याद किए थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दाएं 10 की ज़िंदगी की बस हो गई। शहर के दूसरे कोने के किराए के घर में इद्दत गुजारनी भी बहुत मुश्किल थी। वो थोड़ा बहुत सामान समेट कर हमरा बच्ची भाइयों के घर लौट आई।
भाइयों ने कोई दावा नहीं किया था, सर पर हाथ भी ना रखा, बिना कुछ कहे सुने सामान को सुजुकी में चढ़ाते रहे। भाभीियों को अंदाज़ा तो हो चुका था कि ये ज़िंदगी भर की जिम्मेदारी सर पर पड़ी है, मगर वो भी माँ बेटी को खुद से लगाए हिचकियाँ भर भर के रोती थी। जवान नंद कमसिन बच्ची, ये मोहसिना के अब्बा का भी घर था और वो इसमें बराबर की हिस्सेदार थी, मगर शादी के बाद अब ये भाभीियों का घर था और मोहसिना एहसानमंद थी। इन्हें मरहूम अब्बा अम्मा का कमरा दे दिया गया। एक अलमारी, पलंग, 4 कुर्सियाँ, मेज़, चटाई, बर्तन मोहसिना ने खुद हिलाकर बावर्ची खाने में रख दिए। भाभी ने पुराना कूलर फेंक कर मोहसिना को नया कूलर स्टैंड में रखा तो मोहसिना ने कोशिश बनाकर कूलर पोश भी निकाल कर ऊपर डाल दिया। इद्दत में 4 माह तक घर से ना निकलने का हुक्म है, मगर घर के अंदर कोना लेने की इजाज़त कोई नहीं देता। 4 दिन तक भाइयों भतीजियों ने खाना पानी रखा और 5वें दिन मोहसिना खुद ही सुबह सवेरे उठकर आटा छानने लगी। सबको नाश्ता देते देते सुई 10 से ऊपर चले गई। बड़ी भाभी टोकरी हाथ में लेकर सब्जी लेने जा रही थी। आज क्या है पकाएं मोहसिना? ये भी रोज़ की मुसीबत है, अब तुम ही बता दो। मटर आलू बना लेते हैं, साथ टमाटर की चटनी। मोहसिना ने भी काम में जूते जूते जवाब दिया, चल जैसे ये रोज़ ही का मामूल हो। 3 दिन से घूम फिर के गोश्त या चावल ही बन रहे थे, साथ वजह भी बयान कर दी। हाँ ये भी ठीक है, छोटी भावच ने भी तायद की। यूँ ज़िंदगी एक नेक ट्रैक पर चढ़ दौड़ी और यूँ भागने लगी जैसे सदियों से बस यही होता रहा हो और होता रहेगा। एक बेहद नॉर्मल ज़िंदगी, सुबह और शाम की एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश। घर का माहौल खुशगवार ही रहा। बेवा नंद माली लिहाज से बोझ नहीं बनी थी। इसे मियाँ की पेंशन मिल जाती थी जो बहुत कलील रकम थी, मगर इन माँ बेटी के लिए काफ़ी थी। 90 की दहाई का आगाज़ सा सादगी का ज़माना था। ऑरेंज कलर के 101 साबुन से माएँ कपड़े भी धो लेती और बाद में बच्चों का सर भी। मुंह धोने का अलग साबुन, अम्मा अपने हाथ पर साबुन रगड़ती और एक हाथ से 4 बच्चों के मुंह निपटा देती। लिबास ज़रूरत की तरह इस्तेमाल होता, ना कि नुमाइश के लिए। खुराक के नाम पर भी सादगी। कभी कभार नाश्ते में हलवा पूरी, बच्चे रेवड़ियाँ और पापड़ खाते। अमीरों को पता नहीं, गरीबों के घर में फल तो बरक ही की तरह आता था और तकसीम हो जाता। मोहसिना के लिए ये सब कुछ मामूल का हिस्सा था। वो इसी घर से 8 साल पहले रुखसत हुई थी, सो आसानी से एडजस्ट हो गई। मगर शजरा तो दर, वो अपने अब्बू की इकलौती लाडो थी। अब्बू इसे बात बेबास रहते थे। वो मोहसिना से ज़्यादा अब्दुल रहीम के करीब थी। अब्बू बॉयज़ स्कूल में टीचर थे, मगर वो अपने साथ ले जाते। वो चाक और डस्टर पकड़े कमरा कमरा घूमती। अब्बू हिसाब के फार्मूला से पूरा तख्ता भर देते। वो अपने कद बराबर का कोना सफ़ेद करती रहती, मुँह सार सब सफ़ेद, थोड़ा चाक भी खा जाती। फिर मोहसिना से डांट खाती, कभी मार भी, मगर अब्दुल रहीम कभी कुछ ना कहते। इकलौती बेटी जी जान से प्यारी थी। वो किसी भी जमात में बैठ जाती थी सबसे अगले डेस्क पर। बहुत ज़िद करके मॉनिटर और परफेक्ट दोनों के बीच भी सीने पर इकट्ठे लगा लेती। और यहाँ मामुओं के घर आने के बाद किसी को ध्यान नहीं रहा कि इसे स्कूल भी जाना है। मोहसिना इद्दत से उठी। एक दिन इसे घर के नज़दीकी स्कूल में दाखिल करवाई। इसे स्कूल पसंद नहीं आया। यहाँ सबसे आखिरी डेस्क पर इसे दिया गया। ये प्राइवेट स्कूल था, एक कसीर और मंजिला इमारत। इसे ग्राउंड और फूल पौधे दरकार थे और बड़ा दरख्त। वहाँ अब्बू के गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड बहुत बड़ा था। वो भाग भाग कर थक जाती थी और अब्बू ने एक दिन दरख्त पर झूला भी डलवा दिया था। इसे नए स्कूल में हवा का फकदान लगा और अंधेरा महसूस हुआ। स्कूल जाने के नाम पर रोना मोहसिना के लिए हैरान कुन था। इस तरह तो स्कूल बहुत पसंद था। मुझे अब्बू वाला स्कूल पसंद है अम्मी, हम यहाँ क्यों आ गए हैं? अपने घर वापस चलते हैं। फिर तो मेरा वो स्कूल नज़दीक हो, 2 गलियाँ आगे बस। इसने मोहसिना की सख्त पास पुरस पर दिल की बात कही। तुम्हें समझा चुकी हूँ शजरात, वो घर हमारा नहीं था और स्कूल भी। वो मेरे अब्बू का स्कूल था अम्मी। वो यूं चिल्लाई जैसे किसी ने दिल नोच लिया हो। मोहसिना चिल्लाने पर भड़की थी, खुद को बर्दाश्त का दर्ज दिया। और अब्बू अब नहीं है बेटा। तो अब्बू कहाँ गए? अभी ने बुला ले, मेरे बहुत मसले हो गए अम्मी। मुझे बहुत सारा काम समझना है, इंग्लिश का और मैथ का भी। उर्दू का मैंने कर लिया।
وہ واپس نہیں آ سکتے۔ تم بچے نہیں ہو شجاعت، محسنہ دانت بھینچ کر چلائی۔ یہی ہمارا گھر ہے اور یہی تمہارا اسکول۔ اگر ایسے تنگ کرتی رہی تو اس اسکول سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ ٹیچر نام کاٹ دیں گی، پھر تم گھر رہنا گندی بچی بن کر۔ ہاں، محسنہ نے تیر نشانے پر لگایا اور وہ ڈر بھی گئی۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی، لیکن میں مانیٹر نہیں ہوں اور آگے بھی نہیں پڑھتی ہوں۔ تم اچھی لائق بچی بنو اور فرسٹ آؤ گی تو ٹیچر خود ہی مانی۔